See here in the last lecture, we have seen about thermochemistry. Now, what is thermochemistry? It is the study of enthalpy changes during a chemical reaction. Study of enthalpy changes during a chemical reaction. So enthalpy changes during the chemical reaction can be called as what? Delta HR. Delta HR. But we measured which enthalpy is standard enthalpy. Standard enthalpy means what? That our reaction means whichever reaction we are having over here, the reaction should be in the standard state. Means the reaction should be performed at 298 Kelvin. Pressure of the reaction should be 1 atmosphere, or we can say 1 bar. And if we are having any solution, then solution should have the concentration of 1 molar. Correct? Then we have seen thermochemical equation. What is thermochemical equation? A chemical equation in which exact value of the enthalpy change, the physical state of the reactant and product are mentioned along with the equation are called as thermochemical equation. So this we have done. Now today I'm starting with the next topic, but which is related to this only. That is, see, because we started with what? Enthalpy of chemical reaction. So now I'm doing with the concept that is of, I can say here, the first one is here is standard enthalpy of formation. I'm going for standard enthalpy of formation, which can be denoted by which symbol. See, I'm using here which word? Standard. So I'll write delta H0. Formation. So I will write here F. It is reaction only, but which type of the reaction? The type of reaction is formation. Correct? So I'll take first example here. Formation of water. And what is the standard state of the water? The standard state of the water is in the which state? Liquid state. Means we are going to form water, and we have to form water in the which state? Liquid state. Correct? So I'll just write here formation of the water H2O in the liquid state. We have to form. Always remember, जो भी कंपाउंड तुम्हें फॉर्म करना है वो राइट साइड में लिखना है, बिकॉज वाटर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो वाटर हैज टू बी ऑन द राइट साइड. वाटर हैज टू बी ऑन द राइट साइड. करेक्ट? नाउ वाटर किससे फॉर्म करोगे? वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स यहाँ पे है. यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे. कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. So I will form the water from hydrogen and oxygen. See, hydrogen formula is H2 and in the which state? Gas. Oxygen formula is O2 and in the which state? Gas. तो हमें क्या देखना है यहाँ पे? जो कंपाउंड हमें फॉर्म करना है वो राइट साइड में लिखना है और उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है. वाटर किससे फॉर्म होगा? फ्रॉम द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द वाटर. विच एलिमेंट आर देयर इन द वाटर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो उनसे ही बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना. अभी नेक्स्ट पॉइंट, जो भी सब्सटेंस तुम बनाओगे उसका अमाउंट कंपल्सरी कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए. मींस वी हैव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द वाटर. हमें 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म करना है, तो 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म यहाँ पे कंपल्सरी 1 मोल ही रखना है. तो 1 H2 है, तो हियर H2 है, बैलेंस. हियर O1 है, तो हियर आई राइट हाफ. So H2 plus half O2 gives you H2O in the which state? Liquid state. And then I'll write here the standard enthalpy of formation is equal to, standard enthalpy of formation is equal to what? Minus 286 kilojoule, minus 286 kilojoule per mole. इसका मतलब, see how many mole of water we are forming? 1 mole.
So when we form the 1 mole of water, मतलब जब हम लोग 1 mole of water form करेंगे तब कितना heat evolved होगा? Evolved मतलब, why I'm saying evolved, because the value of the delta H is minus. So how much heat will get evolved? Minus 286 kilojoule. Correct? So this is called as standard enthalpy of formation of water. So what is the enthalpy of formation of water? It is the enthalpy change occurs when 1 mole of pure substance, 1 mole of pure substance is formed from its element in their standard state. देखो यहाँ पे इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स, मतलब एंथैल्पी चेंज होगा कभी व्हेन 1 मोल ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब हमें यहाँ पे जो भी सब्सटेंस फॉर्म करना है उसका कंपल्सरी अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए. 1 मोल ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. 1 mole of the pure substance is formed in, I'll just write here, in its standard state from its element, मतलब उससे एलिमेंट से ही फॉर्म होगा. मतलब वाटर में कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही फॉर्म होगा विच आर ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. ये एक एग्जाम्पल है. I'll take one more example. Formation of methane. फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन. अभी मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? गैस. तो हमें अभी पे मीथेन फॉर्म करना है, मतलब अगर हम लोग मीथेन फॉर्म करेंगे तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? तो मीथेन फॉर्म करना है तो मीथेन हैज टू बी ऑन द राइट हैंड साइड. यस. हाउ मेनी मोल्स वी हैव टू फॉर्म? कंपल्सरी 1 मोल ही फॉर्म करना है. तो मीथेन इज इन द विच स्टेट? गैस. ओके. नाउ मीथेन कैन फॉर्म फ्रॉम विच एलिमेंट? देखो हम लोग मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में मीथेन किससे बनाओगे? जो एलिमेंट तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे उनसे ही बनाना है. ओके. सो हियर one carbon is there, one hydrogen is there, so I'll just write down here carbon, graphite, because कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट है, प्लस हाइड्रोजन H2 in the gaseous state. Carbon, graphite plus hydrogen gaseous state. So one carbon H4 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा. तो देखो हमने मीथेन यहाँ पे फॉर्म किया. किससे फॉर्म किया? जो एलिमेंट्स में मीथेन के अंदर दिखाई दे रहे वही है, कार्बन और हाइड्रोजन. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन. करेक्ट. एंड सो हियर आई विल राइट डाउन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. मतलब अगर हम लोग मीथेन फॉर्म करेंगे तो एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा? द एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी -74.8 किलो जूल पर मोल. मतलब देखो हमेशा वैल्यू पर मोल ही लिखना है. मतलब व्हेन वी फॉर्म 1 मोल ऑफ द मीथेन from its element which are in their standard state, the enthalpy of the formation is equal to how much we are having? -78.4 kilojoule. So enthalpy of the formation of the methane is -78.4 kilojoule. तो फॉर्मेशन. तो हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब हमें कंपाउंड फॉर्म करना है. कितना अमाउंट फॉर्म करना है? 1 मोल फॉर्म करना है. उसका अमाउंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. और किससे फॉर्म करोगे? उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उनसे ही फॉर्म करना है. करेक्ट. आई जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल. थर्ड, सपोज इफ आई वांट टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड in the gaseous state, because carbon का standard state gaseous state है. So I'll just write down here formation of carbon dioxide and the standard state of the carbon dioxide is gas. Okay, carbon dioxide कितना फॉर्म करना है हमें? ऑलवेज
So whenever they ask us write down the formation reaction, we should know that the amount which we are forming should be compulsory 1 mole. अभी कार्बन डाइऑक्साइड किससे फॉर्म होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनसे ही फॉर्म होगा. तो हियर आई राइट कार्बन, ग्राफाइट. सी कार्बन के दो फॉर्म है, डायमंड एंड ग्राफाइट. लेकिन डायमंड और ग्राफाइट में ग्राफाइट स्टैंडर्ड स्टेट में, and plus O2 in the with state gas. Now balance the equation, 1 carbon 1 carbon. यहाँ पे कितना भी बैलेंसिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी 1 ही रखना है. O2 इक्वेशन बैलेंस है, and I'll write here standard enthalpy of formation of carbon dioxide is equal to standard enthalpy of formation of carbon dioxide is equal to minus 393.5 किलोजूल पर मोल. करेक्ट. सी यहाँ पे तुम्हें कोई भी वैल्यू लर्न नहीं करना है, खाली तुम्हें इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए. कि अगर मैंने बोला कि ओके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो तो आना चाहिए, मीथेन का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो तो लिखने के लिए आना चाहिए, वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो तो वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखने के लिए आना चाहिए. तो लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जो भी कंपाउंड में फॉर्म करना है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 चाहिए. करेक्ट. तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन. देखो टेक्स्ट बुक में काफी लंबा मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो भी लिखोगे तो भी चलेगा. व्हाट इज दैट, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 mole of a pure substance is formed in its standard state. Okay, 1 mole of the substance formed in its standard state from its element in their standard state. मतलब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट है उनसे ही हमें बनाना है. देखो मीथेन में अंदर यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनाना है. कार्बन डाइऑक्साइड किससे, सी और ओ है, तो हमें सी और ओ से ही बनाना है. करेक्ट. अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर्मेशन ऑफ acetic acid, formation of acetic acid. What is acetic acid formula? CH3 COOH and acetic acid in the which state, liquid state. हमें फॉर्म करना, तो कैसे आएगा, देखो जो कंपाउंड फॉर्म करना है उसे राइट साइड में लिखो. तो आई जस्ट राइट CH3 COOH इन द लिक्विड स्टेट. किससे फॉर्म करोगे, यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन. तो 3 एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आई राइट हियर कार्बन, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट है, हाइड्रोजन H2 स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, और ऑक्सीजन फॉर्मूला O2 स्टैंडर्ड स्टेट गैस है. तो वी आर फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड. यहाँ पे कंपल्सरी 1 मोल ही रखना है. अभी अकॉर्डिंगली बैलेंस करो, कार्बन 1 + 1 2, आई राइट हियर 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 1 4, आई मल्टीप्लाई बाय 2, एंड ऑक्सीजन 1 + 1 2. तो यहाँ पे मैंने O2 लिख दिया, और यहाँ पे मुझे मिलेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक वैल्यू मुझे मिलेगा. ओके. तो अभी यहाँ पे एक है बात कि यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगे, द वैल्यूज कैन बी, देखो यहाँ पे वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव है, लेकिन कभी कभी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है. तो यहाँ पे मैं क्या नोट लिखूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट आई जस्ट ऐड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा H0F. इसका मेरी मीनिंग क्या रीड करोगे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और इसका जो मुझे वैल्यू मिलेगा, डेल्टा H का जो वैल्यू मिलेगा, द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और वैल्यू कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. करेक्ट. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ये हो सकता है. तो होपफुली यू विल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन. एक बार मैं वापस डेफिनेशन रिवाइज करता हूँ. इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स, मतलब एंथैल्पी चेंज होगा व्हेन
वन, एक कंपल्सरी डेफिनेशन में 1 मोल आना चाहिए. When 1 mole of a pure substance is formed in its standard state from its element in their standard state. Okay, and then we got this example. कंपल्सरी एक बात ध्यान में रखना है, जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसका अमाउंट 1 मोल ही होना चाहिए, 1 मोल ही होना चाहिए. सब्सटेंस शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और एलिमेंट जो कंपाउंड में तुम्हें दिखाई देते तुम्हें उससे ही फॉर्म करना है. ओके, तो ये हुआ. नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, इससे ही रिलेटेड है. सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर हम लोगों ने थर्मोकेमिकल इक्वेशन में सबसे पहला इक्वेशन लिखा, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिखा, करेक्ट. मैं क्यों समराइज कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एंथैल्पीज करेंगे इसीलिए. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन हुआ. नाउ आई जस्ट लाइक द नेक्स्ट हेडिंग, to calculate standard enthalpy of reaction. Calculate standard enthalpy of the reaction by using standard enthalpy of formation. See what is the heading I have written here? The heading I have written here, calculate the standard enthalpy of the reaction. मतलब reaction का enthalpy calculate करो by using standard enthalpy of formation. मतलब हमारे पास फॉर्मेशन के वैल्यूज रहेंगे, और by using the values of the formation we can calculate the enthalpy of the reaction. ओके, तो यहाँ पे पहले हमें 2 पॉइंट स्टडी करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन, द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमें यूज करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड enthalpies of the standard enthalpies of formation of an element from itself is 0. देखो, the standard enthalpy of formation of an element from itself, मतलब enthalpy of formation of element 0 रहेगा. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलेगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, तो ये वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर कोई बोलेगा तो 0 रहेगा. क्यों? देखो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज लिखा है. यहाँ पे कैसे था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसलिए वैल्यू है. एसिडिक एसिड किससे फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसलिए वैल्यू है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं पहले पॉइंट में, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब अगर हमें कोई भी एलिमेंट फॉर्म, तो एलिमेंट किससे फॉर्म होगा, एलिमेंट से ही फॉर्म होगा. लाइक कार्बन किससे फॉर्म होगा, कार्बन से ही फॉर्म होगा, इसलिए उसका वैल्यू 0 आएगा. हाइड्रोजन किससे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन से ही फॉर्म होगा, तो 0 आएगा. मतलब कोई भी एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा 0 लिखना है, एलिमेंट का, कंपाउंड का नहीं. कंपाउंड का वैल्यू हमारे पास रहता है, एलिमेंट का 0 लेना है. लाइक फॉर एग्जांपल, तो आई विल राइट मेंशन हियर, लाइक एग्जांपल,
that is standard enthalpy of formation of carbon is equal to 0, standard enthalpy of hydrogen is 0, standard enthalpy of formation of chlorine is 0, standard enthalpy of formation of sodium is 0. मतलब कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अकेला एलिमेंट है, तो उसका वैल्यू हमेशा हमें क्या लेना है, 0 लेना है. The standard enthalpy of the formation of an element from itself is 0. Okay, and then second point, the standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpy. The standard enthalpy of formation of compound, मतलब अगर हमें compound का अगर वैल्यू लेना रहेगा, the standard enthalpy of the formation of a compound is equal to its standard enthalpy. मतलब अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वैल्यू लेना, कितना रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वैल्यू, -393.5. अगर मुझे मीथेन का फॉर्मेशन वैल्यू लेना तो कितना रहेगा, -78.4. देन अगर मुझे वाटर का फॉर्मेशन वैल्यू लेना रहेगा तो कितना आएगा वाटर का वैल्यू, -286. तो इनके कंपाउंड के फॉर्मेशन वैल्यूज हमारे पास है, लाइक फॉर वाटर -286, फॉर मीथेन -78.4, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड -393.5. तो कंपाउंड के फॉर्मेशन वैल्यू हमें है, जो हमारे पास रहेंगे वो हमें यूज करने, लेकिन एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू नहीं रहेगा. करेक्ट. The standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpy. Correct. मतलब standard enthalpy of formation of compound is equal to standard enthalpy of reaction of that compound. मतलब वो जो रिएक्शन का जो एंथैल्पी रहेगा वही यहाँ पे लेना है. तो ये 2 पॉइंट्स है, लेकिन मैं फॉर्मूला में बताता हूँ. तो ये है, तो व्हाट इज हेडिंग आई हैव गिवन हियर, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. मतलब कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन 2 पॉइंट हमें यहाँ पे है. एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ इज 0, और एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी. मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मेशन वैल्यू रहेगा वही वो उसके एंथैल्पी रिएक्शन कर रहे हैं उसके लिए. करेक्ट. तो नाउ और हम लोग एंथैल्पी ऑफ द, अगर हमारे पास रिएक्शन रहेगा A moles of A combines with B moles of B to gives you C moles of C and D moles of D. ये हमारा रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to standard enthalpy of reaction is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. देखो ये फॉर्मूला हमने लर्न किया था, लेकिन यहाँ पे ऐड क्या कर दिया कि अगर मुझे कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी अगर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के एंथैल्पी से रिएक्टेंट का एंथैल्पी माइनस करना पड़ेगा. लेकिन प्रोडक्ट के लिए मुझे कौन सा एंथैल्पी देखना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी. रिएक्टेंट के लिए मुझे कौन सा एंथैल्पी देखना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मुझे रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
from the enthalpies of the formation of the product, subtract the enthalpies of the formation of the reactant, और हमें आंसर मिल जाएगा. मतलब प्रोडक्ट का जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मेशन रहेगा, और रिएक्टेंट का भी मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज करूंगा फॉर्मेशन ही रहेगा. तो ये हमारा मेन है फॉर्मूला. उसके बाद अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा. लेकिन व्हाट इज द रिएक्शन वी आर हैविंग? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन can be calculated by using what? The standard enthalpy of formation of the product minus summation of standard enthalpy of formation of the reactant. Okay. Now to explain this, I will take one example. Suppose the example is calculate standard enthalpy of reaction. Calculate standard enthalpy of reaction. Now, which reaction they have given here? 2 C2 H6 in the gaseous state plus 7O2 in the gaseous state gives you 4 CO2 in the gaseous state plus 6 H2O in the liquid state. करेक्ट? ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के लिए यूनिट क्या रहेगा? किलोजूल रहेगा. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या रहेगा? किलोजूल रहेगा. करेक्ट? तो उन्होंने और हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है? देखो, ये हमारा रिएक्शंस है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और हमें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है. लेकिन उन्होंने वैल्यू इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड किया है कि दे हैव गिवन हियर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया हुआ है, दैट इज -84.9 किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 is given -393.5 किलोजूल पर मोल, बिकॉज देखो फॉर्मेशन वाले हमेशा 1 मोल के लिए रहेंगे. एंड दे आल्सो गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2 is given is equal to -285.8 किलोजूल पर मोल. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. करेक्ट? सो देखो, ये हमारा इक्वेशन है. अगर हम लोग ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमें कितना हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा कैलकुलेट करना है. लेकिन उन्होंने कौन सा इंफॉर्मेशन उसके लिए दिया हुआ है? दैट दे हैव गिवन द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इथेन, they have given the enthalpy of formation of CO2, and they have given the enthalpy of the formation of the water. ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दिए हुए हैं. करेक्ट? लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, इथेन का वैल्यू दिया हुआ है, CO2 का वैल्यू दिया हुआ है, और वाटर का वैल्यू भी दिया हुआ है. दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ O2. O2 का वैल्यू क्यों नहीं दिया है? देखो, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है. व्हाट इज कंपाउंड? द वन विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. The one which is made of 2 or more element are called as compound. लेकिन यहाँ पे O2 है, O2 एलिमेंट है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2 इज नॉट गिवन, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कैसे होता है? 0 होता है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2 इज नॉट गिवन बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. करेक्ट? तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है. क्या मेंशन किया है? देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन of an element from itself is 0. ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगा. करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, ये वैल्यू हो गया. तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें दिया है, ये वैल्यू दिया नहीं था, मतलब तुम्हें मालूम होना कि वैल्यू 0 है. नाउ विल यूज द फॉर्मूला. Yes. So I'll use the formula here. What is the formula I'll use here? Standard enthalpy of the reaction is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of
summation of standard enthalpy of formation of reactant, correct? So standard enthalpy of the formation of the product minus summation of standard enthalpy of the reactant, ये है. तो now I write equal to, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है. हमारे पास प्रोडक्ट भी है और हमारे पास रिएक्टेंट भी है, करेक्ट? तो अभी देखो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन सा है, CO2 एंड वाटर है. सी दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ CO2 माइनस 393.5 किलो जूल पर 1 मोल दिया है, करेक्ट? 1 मोल के लिए. और वाटर का वैल्यू भी 1 मोल के लिए, लेकिन हमारे पास कितने मोल्स है, 4 है. तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन 4 इंटू, बिकॉज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स है, 4 इंटू standard enthalpy of formation of carbon dioxide plus 6 into standard enthalpy of formation of the water. ये हमारा प्रोडक्ट है. यहाँ पे 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दे हैव गिवन द वैल्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 and in our equation we are having how many mole, 4, so multiply by 4. Again they have given the value for the formation of 1 mole of water और हमारे पास इक्वेशन में कितने मोल्स है, 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ माइनस. आई राइट अवर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कौन कौन है हमारे पास, देखो यहाँ पे वी आर हैविंग 2 रिएक्टेंट, ईथेन एंड O2. नाउ दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ईथेन फॉर हाउ मेनी मोल, 1 मोल. तो हमें ये वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 7 O2 है. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर दैट्स 2 into standard enthalpy of the formation of C2H6, yes, plus 7 into standard enthalpy of formation of O2. ये वैल्यू 0 होता है लेकिन तो भी फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा. तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट. तो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इक्वल टू 4 into the value of the CO2 they have given is minus 393.5 plus 6 into the value of the water they have given is minus 285.6. ये हमारा प्रोडक्ट हुआ माइनस रिएक्टेंट. 2 into the value of the C2H6 they have given is how much, minus 84.9 plus 7 and O2 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, right? मतलब O2 का वैल्यू नहीं होता है, 0 होता है, बट हमें फॉर्मूला में लिखना है. एंड बाद में आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, आई विल मल्टीप्लाई बाय स्टेप. तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो माइनस 1574 माइनस 1714.8 और देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84 को तो कितना आएगा यहाँ पे 169.8 और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस. दिस इज माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. and after adding all I got the answer here minus 3119 kilojoule. so this is the standard enthalpy of the reaction. मतलब अगर हम लोग ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हमें इतना एंथैल्पी चेंज मिलेगा, करेक्ट? ओके. तो ये दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट. मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ जो एक्सरसाइज में हमारे पास है, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. यस, अपने टेक्स्ट बुक में मतलब नंबर 12 का सम है, फ्रॉम एक्सरसाइज आई एम यूजिंग नंबर 12. कैलकुलेट स्टैंडर्ड enthalpy of reaction.
calculate standard enthalpy of reaction. Now, which reaction they have given here? Fe2O3 in the solid state plus 3CO in the gaseous state, 2Fe in the solid state plus 3CO2 in the gaseous state. ये इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। और उसका यूनिट हमेशा रहेगा ओनली किलोजूल, क्योंकि रिएक्शन का एंथैल्पी, हाँ अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है तो कंपाउंड का एंथैल्पी क्या आएगा, किलोजूल पर मोल आएगा, लेकिन रिएक्शन का एंथैल्पी तो किलोजूल है, करेक्ट। और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दे हैव गिवन हियर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 is given minus 824 किलोजूल पर मोल, इसके लिए दिया है, 1 मोल के लिए दिया हुआ है। Then standard enthalpy of formation of CO is minus 110 kilojoule per mole, and standard enthalpy of the formation of CO2 is equal to minus 393 kilojoule per mole, correct. The enthalpy of the formation of Fe2O3, enthalpy of formation of CO and enthalpy of formation of CO2 ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे Fe2O3 का वैल्यू दिया हुआ है, CO का फॉर्मेशन वैल्यू दिया हुआ है, CO2 का Fe नहीं दिया, Fe क्योंकि एलिमेंट है, तो एलिमेंट का फॉर्मेशन वैल्यू कितना रहेगा, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe उन्होंने दिया नहीं है, बट हमें मालूम है कि ये वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0। नाउ आई यूज द फॉर्मूला, the formula will be what, standard enthalpy of the reaction is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. Standard enthalpy of formation of the product minus reactant is equal to, अभी देखो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट है, Fe और CO2 है, 2 mole of Fe and 3 mole of CO2. So I'll just write down here 2 into standard enthalpy of formation of Fe plus 3 into standard enthalpy of formation of CO2, ये प्रोडक्ट हुआ, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है देखो Fe2O3 एंड CO है, तो आई राइट डाउन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 plus 3 into standard enthalpy of the formation of CO, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, करेक्ट। तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, 2 into Fe, Fe is only element and the value of the Fe is equal to 0, plus 3 into CO2, CO2 how much they are given, minus 393, minus Fe2O3 only 1 Fe2O3 यहाँ पे है, 1 ही Fe2O3 है और उसका वैल्यू है minus 82 824 plus 3 into CO, CO is minus 110, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे 2 into 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट माइनस, ओके कम ऑन प्लीज मल्टीप्लाई एंड टेल मी, 393 into 3, 393 into 3, प्लीज मल्टीप्लाई करो एंड बोलो मुझे,
ओके 879 ए जीरो था और ए इंटू माइनस हो गया, फिर यहाँ पे अगर मैं ए माइनस ही रखता हूँ और इनसाइड द ब्रैकेट ये आएगा -824 और ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो कोई 3 इंटू 0 3 ओके, तो देन आई राइट हियर -879 माइनस, नाउ इनसाइड द ब्रैकेट दोनों का एडिशन कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 4 3 + 2 5 8 + 3 11 और ये माइनस आ जाएगा, तो हियर -879 + 1154, तो ये अभी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा 1154 - 879. Yes, so this is the answer we are getting. So our answer is equal to -2. कितना आ रहा है आंसर? कुछ सब्ट्रैक्शन रॉन्ग हुआ क्या थोड़ा? सर Yes. -879 रॉन्ग वाला है सर। Okay, okay. How much it is? 1 minute. I'll multiply 393. 1179 है सर। Okay, okay. 1179. 79 179. किसने जानबूझ के बोला क्या कि मेरा मिस्टेक हो जाए? नहीं ना, -1179. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1179. 1189 आएगा। 1189 आएगा। देखो एक बार प्लीज बराबर, अच्छा मैं ही करता हूँ। 3 3 9 9 3 27 3 3 9 9 3 27 तो 27 3 3 9 9 + 2 11 1179 आ रहा है। प्लीज चेक करो एक बार, इज इट करेक्ट? तो बच्चों बोलो। हो सर। ओके नाउ ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे 1179 है, करेक्ट? यस, सो हाउ मच आई गॉट हियर? 1179, ये रॉन्ग हुआ। 1179 माइनस और प्लस 1154, तो 9 - 4 5 7 - 2, yes correct. So here we got the answer -25 किलोजूल। मतलब अगर हम लोगों ने ये रिएक्शन परफॉर्म किया तो रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आ रहा है? -25 किलोजूल आ रहा है, करेक्ट? तो अभी मैं एक लास्ट सम एक टाइप का करता हूँ, तो देखता हूँ, 1 मिनट थोड़ा वो पे होल्ड करो, मैं देखता हूँ सम मेरे पास कहाँ पे है। ओके देखो एक प्रॉब्लम है सेम, अभी एक्चुअली हमने सेम प्रॉब्लम किया लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेटा डिफरेंट है। देखो मैं खाली प्रॉब्लम बताता हूँ फिर तुम सॉल्व भी कर सकते हो। जो अभी एक प्रॉब्लम किया वही टाइप का है। 4 सो उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट and please write down all this problem in your notebook. Calculate the standard enthalpy of formation of C2H6. अभी उन्होंने क्या बोला है? देखो हमें कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 करना है, ये निकालना है। रिएक्शन का एंथैल्पी नहीं चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। What is the, see उन्होंने इक्वेशन दिया 2 C2H6 in the gaseous state, 7 O2 in the gaseous state gives you 4 CO2 in the gaseous state plus 6 H2O in the liquid state. और यहाँ पे उन्होंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -3119 किलोजूल। देखो
मतलब यहाँ पे कैसे अलग कैसे है, अभी तक हमने जो दो न्यूमेरिकल्स किए उसमें हम लोग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, करेक्ट, और हमें इसका एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन पूछा, तो हमने उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया, देखो दे हैव गिवन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है which is equal to minus 395.5 kilojoule per mole. They have given standard enthalpy of formation of water which is minus 285.8 kilojoule per mole, करेक्ट, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 नहीं दिया, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेशन, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर व्हाट, किलोजूल पर मोल। देखो फॉर्मेशन वैल्यू हम लोग हमेशा 1 मोल के लिए कंसीडर करते हैं, इसलिए तो उन्होंने यहाँ पे CO2 का वैल्यू दिया हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन दिया हुआ है, C2H का फॉर्मेशन नहीं दिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये वैल्यू हमेशा मालूम है 0 रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये पूछा है, करेक्ट। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे हमेशा जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि किस कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, फॉर्मेशन ही होना चाहिए, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपल्सरी, बिकॉज अगले वाले लेक्चर में हम लोग कंबशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी भी कंबशन का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमेशा कंपल्सरी कौन सा वैल्यू होना चाहिए फॉर्मूला में, फॉर्मेशन ही होना चाहिए, तो फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना दिया हुआ है, 3199 दिया है, करेक्ट। वेल राइट 3119 माइनस, ओके, देन प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर, तो आई राइट 4 into standard enthalpy of formation of CO2 plus standard enthalpy 6 into standard enthalpy of formation of water. Okay, 4 into standard enthalpy of formation of CO2, 6 into standard enthalpy of formation of the water minus reactant, ये reactant है, so I'll write 2 into standard enthalpy of the formation of C2H6 plus 7O2 है, यहाँ पे 7O2 है, करेक्ट। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर स्टैंडर्ड 7 into स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। नाउ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, minus 3119, 4 into CO2 is minus 395.5, 6 into water is minus 285.8, minus 2 into स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कैलकुलेट करना है, इंटू 7 इंटू 0, मतलब ये 0 आ जाएगा, करेक्ट। 7 इंटू 0, ये प्लस है, ये प्लस है, और 7 इंटू 0, तो हियर आई जस्ट राइट डाउन माइनस 3119 इक्वल टू माइनस, अभी मुझे अगर बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन, एक मिनट मेरे पास है, इट इज माइनस 1574 माइनस 1714.8, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, क्योंकि उसके आगे क्या था, 0 था, 7 इंटू 0, तो ये होगा नाउ आई राइट माइनस 3119, ओके, इक्वल टू, ये दोनों का मुझे एडिशन बोल सकते हो, कौन सा नंबर है, 1574 माइनस 1714.8,
-1574 माइनस 1714.8 तो कितना आएगा 88823 minus. So here I got minus 3288.8 into 2 into standard enthalpy of the formation of C2H6. यहाँ पे क्या होगा देखो फिर -3119, यहाँ पे जो माइनस साइन हो इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 3288.8 equal to minus 2 into ओके तो यह है, तो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस में यहाँ पे लेकेगा प्लस हो, अभी इनका सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आएगा देखो 3288.8 ये प्लस है माइनस 31198। एक मिनट किसी का ऑडियो ऑन है, सानिया घाट के किसी का ऑडियो ऑन है, सानिया घाट के तुम्हारा ऑडियो ऑन है क्या देखो, अगर है तो ऑफ कर दो। एट और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 18 माइनस 9 yes and it is plus, so here I got plus 169.8 equal to minus 2 into standard enthalpy of the formation of C2H6, correct? So 169.8 divided by 2 is equal to minus standard enthalpy of the formation of C2H6 और मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 8 जा, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 169.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा, so how much I got here 84.9 equal to minus standard enthalpy of formation of C2H6, correct? So therefore we got the answer, standard enthalpy of formation of C2H6 is equal to, ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस 84.9 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे कैसे देखा हम लोगों ने, यहाँ पे फॉर्मूला में कैसे देखा देखो, उन्होंने इक्वेशन का एंथैल्पी दिया था, रिएक्शन का एंथैल्पी दिया था, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया था, बट फॉर्मेशन ऑफ C2H6 नहीं दिया था, तो हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, करेक्ट? तो they have given the enthalpy of the formation of CO2, they have given the value of formation of the water, but they have not given the value of formation of C2H6. ओके तो ये कंप्लीट हुआ, ये 3 न्यूमेरिकल्स हुए, और कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? किसी को डाउट है क्या? एनीवन हैज एनी डाउट्स और डिफिकल्टी? तो आज हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट किया था एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन और हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, करेक्ट? तो कोई डाउट रहेगा तो बोल दो।